वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सो हम अपनी फ्री क्रैश कोर्स जो हमारा है आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के सीरीज़ को आगे ले चलते हैं और आज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, काइंडली वॉच इट। और पार्ट 2 जो है वो आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें कि हमें पार्ट 2 में क्या करना है, उसका सिलेबस देखिए। आपकी स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल जो है विश्वास का, उसकी लिंक दी हुई है, तो आप बिल्कुल उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप जो हमारा कंटेंट है विश्वास का उसको पीडीएफ फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आज हमें क्या करना है। आज है हमारे पास ये जो येलो पोर्शन है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट और नच थ्योरी। इसके पहले का जो पार्ट है जो येलो हाईलाइटेड नहीं है वो हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच टू मैनेजमेंट वॉज एडवोकेटेड बाय हेनरी फेयोल। तो किसने दिया? हेनरी फेयोल ने, ठीक है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट और फंक्शनल मैनेजमेंट। फेयोल is also called the father of administrative management. Very important point. He is the father of administrative management, and the same way as Taylor is called the father of scientific management. ठीक। He acquired the knowledge of management by working as a manager in various companies in France. Fayol started his career in 1860 in a French company as a junior engineer. He believed that more emphasis should be laid on organizational management and the human and behavioral factors in the management. Thus, unlike the scientific management theory of Taylor, where more emphasis was on improving the workers' efficiency and minimizing the task time, here the main focus is on how the management of the organization is structured and how well the individuals therein are organized to accomplish the task given to them. Fayol emphasized that management involved the application of certain skills which could be acquired by a person on the basis of systematic instructions and training. Once acquired, the skills could be applied to all types of institutions, including the church, schools, political as well as industrial organizations. Besides a systematic analysis of the management process and management functions, Fayol formulated a set of 14 principles as guidelines for implementing the process of management. कितने principles guidelines के लिए दिए इन्होंने? 14 principles. ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। These principles were stated in flexible terms and expected to be used of managers under all circumstances. According to Fayol, administrative skills were more essential for higher level managers while technical abilities were required more at the lower level positions. तो इन्होंने ये भी बता दिया कि administrative skills जो हैं वो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? Higher level managers के पास administrative skills होनी चाहिए और जो lower level position पे हैं उनके पास क्या ज़्यादा होना चाहिए? Technical abilities. He also believed that managerial training was essential for people in all walks of life. उनके लिए managerial training एक बहुत ही important role play करती थी, चाहे आप लाइफ पे किसी भी फेज में हो, आप वर्कर हो या ना हो, उस चीज से इससे मतलब नहीं था. Fayol divided all activities of industrial enterprises into the following 6 groups. पहला क्या था? Technical activities concerning production, commercial activities of buying and selling, financial activities intended to seek optimum use of capital, accounting activities pertaining to final accounts, costs and statistics, security activities relating to protection of property और managerial activities. ठीक है? Fayol suggested that following 14 principles, ये जो इनके suggestions थे 14 principles के, वो ये हैं. Division of work. पहला क्या है? Division of work. So as to produce more and secure better performance with same effort. किस लिए करना है division of work? जिससे secure और ज़्यादा production हो performance का, लेकिन effort same हो, ठीक है? तो इसलिए हम काम बांट देते हैं.
सेकेंड क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेनेवर अथॉरिटी इज यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस एंड द टू आर को एक्सटेंसिव. दोनों आपस में रिलेटेड है. अगर आप किसी को ऑथराइज करोगे किसी रोल के लिए तो उसके ऊपर एक उस रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी नहीं, तभी तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करंट जॉब. ठीक है, तो बोथ आर को एक्सटेंसिव. थर्ड आया हमारे पास डिसिप्लिन, टू एंश्योर ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर सुपीरियर्स. फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड. An employee shall receive orders from one senior only. ठीक है, क्योंकि अगर हर सीनियर उसको ऑर्डर करेगा तो उसका काम मेस्ड अप हो जाएगा. तो वन सीनियर who is looking after that what employee is doing, he knows what the employee has to do, जिसको क्लैरिटी है एम्प्लॉय के वर्क की, तो उसी से कमांड लेगा वो. ठीक है, नॉट विद एनी XYZ सीनियर. ठीक. Then is unity of direction. A group of activities with common objectives shall have one head and वन प्लान. ठीक है, एक डायरेक्शन होना चाहिए, आप कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए उस चीज के. ये नहीं कि आपके ग्रुप में कोई एक है उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरे के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं. अगर आप डिफरेंट ग्राउंड्स पे हो तो देयर इज नो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्शन में डाइवर्सिटी हमें नहीं चाहिए. सो ही स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट वन इज सबॉर्डिनेशन. सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमारा जनरल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ना है. ठीक, दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेशन. रेम्यूनरेशन, रीएम्यूनरेशन कुछ भी कह सकते हैं. इट शुड बी फेयर एंड अफोर्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द फर्म एंड एम्प्लॉयज एज वेल. ठीक है, फर्म के लेवल पे भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और एम्प्लॉयज के भी लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. फिर क्या है, सेंट्रलाइजेशन. Top management should decide the extent to which authority is to be dispersed in the organization or retained at higher levels. Centralization or decentralization should be viewed as a question of proportion. फिर next है scalar chain. It refers to superior subordinate relations throughout the organization. It should be short circuited and not be carried to the extent that it proves detrimental to the business. Scalar chain होनी चाहिए. ठीक है, it refers to superior subordinate relations throughout the organization. ठीक. Next one is order. There must be a place for everything and each thing must be in its appointed place. Similarly, there must be appointed place for each employee and every employee must be in his appointed place. This describes the order we should maintain in an organization. ठीक है, कोई भी चीज एक अपॉइंटेड प्लेस पे होनी चाहिए और हर चीज की जो आप हर एम्प्लॉय का एक क्या होना चाहिए, अपॉइंटेड प्लेस फॉर ईच एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय मस्ट बी इन हिज अपॉइंटेड प्लेस. सो इज वाइस वर्सा. ओके. इक्विटी. मैनेजमेंट मस्ट हैव द डिजायर फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट व्हाइल डीलिंग विद पीपल. इक्विटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ kindliness and justice in a manager. फिर next है stability of tenure of personnel. Management should strive to minimize employee turnover. Okay. 13th is your initiative. It refers to thinking out and executing a plan. 14th is esprit de corps. What does this mean? This means that this principle emphasizes the need for teamwork and the importance of effective communication in obtaining it. ठीक है, किस पे एम्फोसाइज किया है, टीम वर्क पे. टीम वर्क कैसे होगा, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे. ठीक है. So Freud described the above principles as a matter of convenience. He did not intend to close the list or make the principles inflexible. उन्होंने ये principles lay down कर दिए हैं. ठीक है, लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि अब बस यही 14 प्रिंसिपल्स है, अब इसके आगे कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंज नहीं हो सकता या कोई नया प्रिंसिपल नहीं बन सकता. ठीक है, ऐसा नहीं ले, ऐसा उन्होंने नहीं कहा. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 14 उनके हिसाब से प्रिंसिपल्स थे. ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर, है ना, अभी हमने पढ़ा, इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक. According to Taylor, scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and then see in that they do it in the best and cheapest way. Apart from Taylor, other contributors to SM include Frank B. Gilbreth, Maurice L. Cook, Henry L. Gantt, and Harrington Emerson, etc. Taylor has conducted a series of experiments in 3 companies, Midwell Steel, Simmons Rolling Machines, and
Bethlehem Steel. Based on his observations, he introduced certain principles and elements of scientific management. तो अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. इसके पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में. सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. इनका पहला क्या है? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. टेलर एम्फसाइज द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट फ्रॉम एक्चुअल डूइंग वर्क. ये बहुत ही क्रिटिकल एक लाइन होती है बिटवीन प्लानिंग एंड डूइंग. ठीक है, तो इन्होंने बहुत एम्फोसिस किया कि इसको देयर शुड बी अ सेपरेशन between the planning aspect and actually doing the work. ठीक, before tailors a scientific management, a worker used to plan about how he had to work and what instruments were necessary for that. Supervisor's job was merely to see how the workers were performing. This was creating a lot of problems, and Taylor emphasized that planning should be left to the supervisor and the worker should emphasize only operational work. ठीक है, अभी हमने जो मैनेजमेंट की वीडियोस किए हैं पहले या आगे और करेंगे, तो उनमें आपको ये पता चलेगा कि जो प्लानिंग है वो हमेशा टॉप लेवल पे होती है. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग से कनेक्टेड होता है, और जो उसके लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो उसके ऑपरेशन से इनफर्क होता है. ठीक है, तो इसीलिए इनका ये मतलब था. अब इन्होंने क्या किया, जब तक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं आया था, तो वर्कर क्या करता था? वर्कर इज यूज्ड टू प्लान हाउ ही हैड टू डू वर्क एंड व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स वर नेसेसरी फॉर दैट. सुपरवाइजर क्या करता था? वो सिर्फ देखते थे कि वर्कर का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है और कैसा कर रहा है वो. तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई. तो उन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग जो है सुपरवाइजर करे, और जो वर्कर है वो अपने ऑपरेशनल वर्क तक अपना उसका जो बाउंड्री मेंटेन होगी वो कहां तक की होगी? सिर्फ ऑपरेशनल वर्क तक की. ठीक है, तो दोनों लोग का एम्फोसिस अलग अलग होगा. सुपरवाइजर एम्फोसिस करे प्लानिंग पे और वर्कर एम्फोसिस करे ऑपरेशनल वर्क पे. ठीक. Second is your job analysis. Job analysis was given by Taylor, suggests the fair amount of days work requires certain movements and rest periods to complete it. Differential payment. ठीक है, differential payment क्या है? Taylor founded the differential piecework system and the related incentives with production. Under this plan, a worker received a low piece rate if he produced the standard number of pieces and a high rate if he surpassed the standard. Taylor also suggested that the attraction of a new high piece rate would encourage the workers to increase production. अब देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो एक बहुत ही साइंटिफिक तरह से इन्होंने प्ले किया. ठीक है, क्या किया? इंसेंटिव्स और प्रोडक्शन को कैसे रिलेट किया इन्होंने? एक वर्कर, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड जो एक जो स्टैंडर्ड जो कि प्री डिफाइंड नंबर है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या दिया है? उसको लो पीस रेट मिला है. ठीक, हाई रेट कब मिला? व्हेन ही सरपास्ड द स्टैंडर्ड. ठीक है, तो उससे क्या हुआ? वर्कर्स को हमेशा जो हाई पीस रेट होता है इट एनकरेजेस द वर्कर्स. ठीक है, और जब वर्कर्स एनकरेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, so that is the differential payment. Then is functional foremanship. In order to improve the quality of the supervision of workers at the supervisor level, Taylor developed the concept of functional foremanship. In this system, 8 persons are involved to direct the activities of workers. Out of these, 4 persons are concerned with planning and remaining 4 are concerned with doing aspect of the work. All of them give directions to workers on different aspects of work. Standardization. Standardization should be maintained in respect of instruments and tools, period of work, amount of work, work conditions, cost of production, etc. तो ये जो सारे field of work है इसमें क्या हमारे पास एक standardization maintain होनी चाहिए. Mental revolution. Scientific management depends on the mutual cooperation between the management and workers. क्या होना चाहिए? Mutual cooperation होना चाहिए between management and workers में. For this cooperation, there should be mental change in both parties from conflict to cooperation. अब management और workers के बीच में कोई conflict नहीं होना चाहिए. ठीक है, cooperation होगी तभी conflict नहीं होगी, है ना? दोनों चीजें एक साथ exist नहीं कर सकती. Taylor feels that this is the most important feature of scientific management because in its absence no principle of scientific management can be applied. इसीलिए mental revolution की बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे हम कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ साइंटिफिक
management process in our organization. ठीक है. Scientific selection and training of workers. Taylor gave importance to the scientific selection and development of the worker. Taylor understood the importance of developing the worker and suggested to develop and train every worker in order to bring out his best. उनका ये था कि हर worker को हमें train करना है, ठीक है, so that he can reach up to his maximum potential, and indirectly reaching, if the worker is reaching to his maximum potential, he is bringing benefit to the organization only. Okay. Taylor comprehended that such trainings will enable the worker to perform a better, more interesting and profitable class of work than he has done in the past. Next is your financial incentives. Financial incentives can motivate workers to put in their maximum efforts. If provisions exist to earn higher wages by putting in extra effort, workers will be motivated to earn more. Yes, money can make workers, no, they can be motivated towards working extra. Okay. Next is your principles of scientific management. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस. टेलर हैज सजेस्टेड द मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया तो उनके हिसाब से क्या है, टेलर के हिसाब से मैनेजमेंट इज अ साइंस. Every decision is to be taken or activities to be performed must be based on facts. Yes, that is why they have considered as management as science, because it is based on facts. He told that we should not stick with old techniques but strive to form new techniques. The best technique could be found after proper discussion between managers and workers. उनका मानना यह था कि हमें पुरानी जो टेक्निक्स ऑलरेडी दी हुई हैं, हमें उनको ही एकदम ऐसे फॉलो नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हम नए टेक्निक्स को लेके आ सकते हैं जहां पे जब हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट इज योर हार्मनी इन ग्रुप एक्शन. He told that inside the organization there should be harmony among the workers and there should not be any dispute between the workers. ठीक है. Next is cooperation, not individualism. It states that should be cooperation among the worker and different departments. Since all departments are interdependent on each other, so there should be a spirit of cooperation rather than internal competition. तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो वो उनके वर्कर्स के बीच में तो कॉपरेशन होना ही चाहिए, बल्कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी कॉपरेशन होना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, वहां पे कॉपरेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर मैक्सिमम आउटपुट. Scientific management involves continuous increase in production and productivity instead of restricted production either by management or by workers. ठीक है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको फेवर करता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन को. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. इन साइंटिफिक मैनेजमेंट all workers should be developed to the fullest extent possible for their own and for the company's highest prosperity. Development of workers requires their scientific selection and providing them training at the workplace. Next is your human relations approach. Inadequacy in scientific and देखो, जब कोई अप्रोच आता है तो उसका मतलब ये होता है कि पहले कुछ ऐसा डेफिकेसी पाई गई, पहले कुछ ऐसा कमी थी जिसकी वजह से हमें ये अप्रोच बनानी पड़ी. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक. तो इसमें कुछ कमी थी विच गेव राइज टू the importance of man behind the machine, importance of individual as well as group relationships in the workplace. अभी तक हम क्या बोले थे, मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, मशीनरी नहीं होनी चाहिए, नया एडवांसमेंट होना चाहिए. लेकिन अभी यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या कह रहा है, उसने रियलाइज कराया कि देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन बिहाइंड द मशीन and the individual and the group relationship we have in the workplace. According to this approach, management is the study of behavior of people at work. Now the whole focus is on human. ठीक है. तो ये इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क. This approach states the view that the effectiveness of any organization depends on the quality of relationship among the people working in the organization.
The basic assumption of this school still remains that the goals of the organization are achieved through and with the people. This is very true. कोई भी goal आप achieve करोगे, you have to achieve it through the people and of course with the people. This approach had its origin in a series of experiments conducted by Professor Elton Mayo and his associates at the Harvard School of Business at the Western Electric Company's Hawthorne Works near Chicago. Kindly remember the names related to every approach and every जो भी हम अप्रोचेस कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट थ्योरीज कर रहे हैं, उनके जो आपके जो कंसर्न रिनाउंड पीपल हैं जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है या वो जिसका उन्होंने ओरिजिन किया है, आप प्लीज उसको याद करते चलो. These studies were eventually became known as Hawthorne studies. ये सारी स्टडीज जो हम अभी करेंगे वो कहाँ पे हुई थी? हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज हॉथॉर्न वर्क्स नियर शिकागो. तो ये बेसिकली यहाँ पे हुई थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? हॉथॉर्न स्टडीज. क्या था उसमें? इट इन्वॉल्व वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, हॉथॉर्न इफेक्ट, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक वायरिंग, रूम एक्सपेरिमेंट. अब इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या था? इट बिगैन विद वेरियस ग्रुप ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर ग्रुप्स. ठीक है, तो वेरियस ग्रुप ऑफ वर्कर्स को बुलाया गया और उनको क्या कर दिया गया? सबको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. एक था हमारा टेस्ट ग्रुप, दूसरा था हमारा कंट्रोल ग्रुप. ठीक, इल्यूमिनेशन मतलब यहां से है लाइट का. ठीक, अच्छा, टेस्ट ग्रुप के साथ क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वेरिएशन रखा. कंट्रोल ग्रुप के साथ क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा. इट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज मेकिंग टेलीफोन रिलेज. उनके साथ क्या, उनको जो ऑब्जर्व किया गया लोगों को, उनको एज अ एम्प्लॉय उनको टेलीफोन रिलेज करने थे. ठीक है, द पर्पस वाज टू डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी. ठीक, इस ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, उसका टारगेट क्या था? उसका पर्पस क्या था? कि डिटरमाइन करना था कि द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है, ये हमें ऑब्जर्व करना है. Productivity increased in both the groups, hence researchers felt that there is something apart from lighting that is influencing the performance. The changes made then were test, जो प्रोडक्टिविटी जो है दोनों जगह इंक्रीज हो रही थी, टेस्ट ग्रुप में भी, कंट्रोल ग्रुप में भी. ठीक है, लेकिन टेस्ट ग्रुप में तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वेरिएशन था, कंट्रोल ग्रुप में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट थी. तो जो रिसर्चर्स थे उनको ये तो पता लग गया कि इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट जो है, ठीक है, या जो हम इंटेंसिटी को वेरिएट कर रहे हैं या फिर उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उसका कोई प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ रहा है. ठीक है, सो दैट इज नॉट द वेरिएबल विच वी हैव टू कंसिडर. तो उन्होंने क्या किया? कुछ चेंजेस किए. चेंजेस क्या किए? टेस्ट ग्रुप जो था, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरिएशन में थी, उसका पेमेंट क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. ठीक, कंट्रोल ग्रुप का क्या किया? कंट्रोल ग्रुप का पेमेंट कांस्टेंट रखा, जैसा पहले था वैसा अभी भी है. ठीक, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज स्टडीली रिगार्डलेस ऑफ चेंजिंग वर्किंग कंडीशंस. अब यहाँ पे पेमेंट इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ पे पेमेंट स्टेबल रखा गया, लेकिन यहाँ तब भी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टडीली इंक्रीज हुई. ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ का पेमेंट बढ़ाया गया तो टेस्ट ग्रुप ने अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया हो, या कंट्रोल ग्रुप का पेमेंट सेम है तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी एकदम कम कर दी हो. ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, अब इसका आंसर था व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट में मिलेगा. हॉथॉर्न इफेक्ट. अब हॉथॉर्न इफेक्ट का क्या था? हॉथॉर्न इफेक्ट का बेसिकली ये था कि उनको पता था लोगों को कि दैट दे आर अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उनको ये पहले से पता था कि हाँ, हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही तो जा रहे हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से उनको वहां पे स्पेशल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट मिली. सो अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले तो दोज पीपल वर जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर द रिसर्चर्स, है ना. जो हम रिसर्चिंग लैंग्वेज में बोले, जो रिसर्च वाली लैंग्वेज होती है, तो दोज पीपल वर जस्ट अ सब्जेक्ट एंड दे न्यू इट दैट दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो उनकी तरफ से कोई यूजुअल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, है ना. देयर वाज कोई मैनेजमेंट नहीं था उनके ऊपर. ठीक है, वो सिर्फ उनको वो एम्प्लॉइज थे. देयर वाज नोबडी लीडर इन देम, नोबडी वाज मैनेजिंग, नोबडी वाज सुपरवाइजिंग देम. ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ग्रुप प्राइड अमंग द पीपल. उसकी वजह से क्या हुआ? उनको एक बिलोंगिंगनेस हो गया और उनके पास ग्रुप प्राइड हो गया लोगों को. ठीक, हियर अपार्ट फ्रॉम मनी अ हेल्दी सोशल क्लाइमेट वाज मेकिंग द ग्रुप्स वर्क वेल. ठीक है, तो मनी के अलावा जो उनका एक हेल्दी सोशल क्लाइमेट और सर्कल बन गया था, ठीक है, आपस में, उसकी वजह से वो ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे थे.
तो फिर उसके बाद क्या, बेटर ट्रीटमेंट मेड देम वर्क टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। अब जब इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऑब्वियसली उनको अच्छा लग रहा है, तो इसकी वजह से वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रहे थे। ग्रुप्स हैड मोर इन्फ्लुएंस ऑन वर्कर्स देन द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। At this stage, researchers wanted clear answers, hence came up with interviewing. तो अभी भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्रोडक्टिविटी को हम किस पे बेस करें, कैसे पता करें कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या पता चल रहा है कि जो ग्रुप्स हैं हमारे, उनका अब ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और लोगों को यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, बट फिर भी लोग अपने आप को ग्रुप प्राइड में ले रहे हैं, उनको लग रहा है क्लाइमेट, सोशल हेल्दी क्लाइमेट है उनके पास, है ना, तो इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से रिसर्चर्स को क्लियर आंसर चाहिए था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप इंटरव्यूइंग करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक। तो इंटरव्यूइंग में क्या हुआ, Mayo initiated a 3-year long interview program in 1928 covering over 21,000 employees to find out the reason of productivity, क्योंकि अभी तक कोई clear reason नहीं मिल पाया था, ठीक। So employees were allowed to talk freely, ठीक। People talked about issues like children, their education, financial problems in family, social unacceptance, etc. उनको कोई रोक टोक नहीं थी इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में, वो जिसके बारे में बात करना चाह रहे थे वो कर सकते थे, ठीक। Most of the complaints were baseless with respect to the working environment. तो उन्होंने ये पाया इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में कि जो लोग बात कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही वर्क एनवायरनमेंट से हटके है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। They just wanted to open up to their problems and to an understanding person who will not judge or advise them regarding their problem, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनको जो रिसर्चर्स थे उनको ये लगा कि हाँ ये बात जरूर है कि वो ऐसे किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो उनको एडवाइस नहीं देगा, ठीक है, जो उनको सजेशंस नहीं देगा, जो उनको जज नहीं करेगा, जो उनको ये नहीं बोलेगा कि तुमने गलत किया, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने पॉइंट आउट किया कि दिस ऑल गिव्स राइज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, ओके। Then it was bank wiring room experiment. इसमें क्या था, to find out how informal group works, this experiment was set up. 14 male workers were set up into a small work group and were observed for 7 months. The men were engaged in telephone exchange of terminal banks. They were paid on the efficacy plus a bonus based on the average group effort. Expectation was efficient workers would bring pressure on less efficient ones to increase the output, hence enjoy the incentive. उन्होंने क्या कंडीशन लगाई कि एफिकेसी पे तो वर्क मिलेगा ही, ठीक है, यू विल गेट पेड फॉर एफिकेसी प्लस एक बोनस और मिलेगा अगर आपका एवरेज ग्रुप एफर्ट प्रोडक्टिव रहा, अच्छा रहा तो, ठीक। Contrast to this, groups established their own standard output. इसके बावजूद ग्रुप्स ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर लिया, ठीक। ग्रुप ऑपरेटेड बिलो इट्स कैपेबिलिटी एंड वाज लेवलिंग आउटपुट टू प्रोटेक्ट themselves. Economic incentives were not enough to influence individual behavior. इसमें से हमें ये पता चला कि अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं, वी पे मनी फॉर नो एक्स्ट्रा वर्क और समथिंग, तो यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था इंडिविजुअल बिहेवियर को टुवर्ड्स वर्क। कॉन्सेप्ट्स, अब जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू नेचर ऑफ मैन, इसमें क्या क्या है, मोटिवेशन। एज पर नीड थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय नीड स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा था मोटिवेशन में, ठीक। मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर बाय इन्फ्लुएंसिंग द नीड्स। आप कैसे करोगे इन्फ्लुएंस बिहेवियर को, जब आप नीड्स को इन्फ्लुएंस करोगे, ठीक है। अभी क्या था, अभी उनको मॉनेटरी नीड्स इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी, तो हो सकता है कोई और नीड्स इन्फ्लुएंस कर देती, तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या करना है, जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, कैसे, बाय इन्फ्लुएंसिंग द नीड्स, बिहेवियर और नीड्स को कोरिलेट करके चलना है। मैनेजमेंट कैन क्रिएट सुटेबल एनवायरनमेंट टू केटर इंडिविजुअल नीड्स विद एन ओवरऑल स्ट्रक्चर। मे बी दे हैव टू केटर एवरी इंडिविजुअल नीड्स, लेकिन विद इन ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने ये जो मैनेजमेंट के वीडियोस किए हैं बिहेवियर को लेके, तो उसमें हमने ये देखा था कि ह्यूमन इज अ क्या है, कॉम्प्लेक्स बीइंग है ना, उसके साथ सोशियो साइकोलॉजिकल
कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं तो हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। मैनेजमेंट कैन गेट द सबऑर्डिनेट्स मोटिवेटेड बाय ट्रीटिंग देम इंडिविजुअली एंड डिफरेंटली। आपने ये देखा होगा, अगर आप किसी को स्पेशली ट्रीट करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बिहेवियर थोड़ा सा आपके प्रति चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट यू आर नॉट सीइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज अ क्राउड, है ना, you are seeing that person as a particular individual as he is expecting you to see him or her. Fine. Then we have an overall plan is needed to deal with the subordinates individually. Fine. Then we have management has to have proper strategies to cater to इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पे भी हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए अलग अलग आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि आप हर नीड जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो भी स्ट्रैटेजीज आप लगाओगे वो कैसे कैरी आउट करोगे। आप इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, सो दैट शुड बी वेल नोन बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अ होल पर्सन। ठीक, the functional idea should always be kept in mind the manager that he needs to deal with the whole of a person and not just only his personality or trait for which they are hired. Okay, so a manager should see the person as a whole being. ये नहीं कि वो सिर्फ इसलिए उसको डील कर रहा है कि हाँ बस तुम इस क्वालिटी के लिए हायर हुए थे तो बस तुम इतने से इतना ही मतलब रखो और ज्यादा नहीं। ठीक है, so manager should we can say that a manager should respect a person as an employee or as a subordinate or his superior. ठीक है, so third हमारा concept क्या है जो related to man है, that is a whole person. Then we have human dignity. Human require respect and dignity. They should not be treated only as actors of production. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हम बस उसको प्रोडक्शन के लिए बस उसको ये समझे कि हाँ बस ये क्या है, ये तो बस हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कंपनी की, और ना आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ना उनको डिग्निटी दे रहे हो, ना आप उनको ये समझ रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू गिव एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटर रिलेटेड है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। Each organization is a social group having a number of small groups. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट में ही कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोसाइटी, छोटी सोसाइटी ही तो है वो, जिसके हर एम्प्लॉय का कॉमन ग्राउंड क्या है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। लाइक पीपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज नीड, स्टेटस एंड रूल्स। दैट इज वेरी ट्रू। एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी तो एक नीड स्ट्रक्चर है, स्टेटस है, रोल है। ओके, Organization should serve both formal and informal relationship. Second is your mutual interest. Organization is formed on the basis of mutuality of interest among its participants. Obviously बात है, जब जो organization form होता है उसके जो हम rules, policies, visions, missions, goals, ये सब जो technical terms हम निकालते हैं, तो वो कुछ लोगों के interest से ही तो बनता है ना। कुछ लोगों के सेम आइडियाज हुए, सेम विजन हुआ और उन्होंने सोचा कि हम इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ म्यूचुअलिटी विल नॉट टेक द ऑर्गेनाइजेशन वेरी फार। द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू कोऑर्डिनेट द कॉमन गोल्स अमंग द इंडिविजुअल्स। जो कॉमन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो एक तो डिपार्टमेंटल गोल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो उनको हटा के जो कॉमन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको जो है मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए उनके साथ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन शुड बी इम्पार्टेड इन अ वे दैट इंडिविजुअल्स फील अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का। परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशन ऑफ द वर्कर विद हैज मैनेजमेंट एंड कोवर्कर्स। अगर उसका रिलेशन अच्छा है मैनेजमेंट और कोवर्कर से, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, वो ज्यादा काम करेगा, उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अल्टीमेटली कंपनी की प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। गुड ह्यूमन रिलेशन प्रैक्टिसेस क्रिएट सैटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। Okay, and if the employee is motivated, he will work to his maximum potential, in return resulting in overall productivity.
Next is job satisfaction. Employee with good relation with team members performs well, and if he is performing well, if he is doing good in the organization, he feels belonged to the organization, that means he is already having the job satisfaction. Free flow of communication, unity and understanding between employees increases job satisfaction. Reduction in disputes. Healthy relations between human resources is necessary for smooth functioning of the organization. Good human relation practices reduces misunderstanding and mistrust between the workers. अगर बहुत अच्छा healthy relation है, good human relation है, misunderstandings नहीं है, तो obvious सी बात है there will be a reduction in disputes. Okay? Innovation. जब बहुत अच्छा ह्यूमन रिलेशन होता है तो उससे हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को, एक्सचेंज तो करते हैं, उसके साथ साथ ही हम कंसिडर करते हैं दूसरों के ओपिनियन और आइडियाज को. वो वाली सिचुएशन नहीं कि बस एक ने बोला और आपने बोला कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते, नहीं. अगर आपका उससे रिलेशन अच्छा है तो यू विल टेक नो, आप उसको बहुत ही प्रॉपरली लिसन करोगे, विल बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, उन पे आप एनालिसिस करोगे कि हाँ ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है. दैट इज कंसिडरिंग अदर्स ओपिनियन एंड आइडियाज, मानोगे कि हाँ वो सही कह रहे हैं. इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज एंड इन टर्न टू फेस द मार्केट कॉम्पिटिशन. Develops informal relation. Informal relation between human resources of the organization reduces stress and work pressure. Employees can freely reach the supervisors for work related problems. अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बिल्कुल आराम से अपने सुपरवाइजर्स के पास जा सकते हैं और उनको अपनी वर्क प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं. ओके, देन वी कम टू सिस्टम अप्रोच. अभी क्या था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जहां पे फोकल पॉइंट पे कौन थे, ह्यूमन रिलेशन. ठीक है, उनका मानना ये था कि जो ह्यूमन रिलेशन है दैट इज द key which plays the role in the productivity of an organization. अब आया है system approach. It is a collection of interrelated parts acting together in order to achieve the predetermined goal. अब system यहाँ पे क्या है, बहुत सारे parts जो interrelated हैं और जो कि predetermined goal को achieve करने के लिए they are directed towards achieving the predetermined goal. System is defined as the This is the definition of system with respect to system approach. System is defined as a set of objects working together with relationships between the objects and their attributes related to each other and to the environment. This is just like how different departments work in the organization. In terms of management, system is a set of different independent parts working together in an interrelated manner to accomplish a set of objectives. Systems approach is a management perspective which advocates that any business problem should be seen as a system as a whole which is made up of an hierarchy of subsystems. इनका क्या कहना है कि जो भी हमारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अलग अलग मत देखो, उसको एज अ पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू देखो, क्योंकि वो क्या है, हायरार्की ऑफ सब सिस्टम से बनी है, तो उसको आप एक अलग अलग उसमें सब सिस्टम्स में मत देखो, उसको एक पूरे होल सिस्टम में देखो. ठीक है, और ये कब इनिशिएट किया गया था, किसके किसके उस पे, दिस वाज इनिशिएटेड बाय लुडविग वॉन बर्टलैंडी. ठीक है, बर्टलैंडी, वॉट एवर यू कैन प्रोनाउंस. ओके, सो नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद कर लीजिएगा. ठीक, अब आगे चलते हैं. फैक्टर्स क्या है सिस्टम अप्रोच में, फैक्टर्स है हमारे पास डिपेंडेंसी, फोकस, रिस्पॉन्सिवनेस, रिजल्ट्स. ये सर्कुलर है. ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. तो अभी हम देखते हैं क्या है हमारे पास डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी क्या है, इसमें क्या होता है, ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम डिराइव्स इनपुट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम टू अचीव द बिजनेस गोल्स. ठीक है, डिपेंडेंसी होती है हर सिस्टम की दूसरे पे, क्योंकि उनसे उनको डेटा चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इनपुट्स चाहिए होती हैं. ठीक, the parts do not exist in silos but are coupled with one another to work as part of an entire working system. आप इंडिविजुअल यूनिट नहीं बोल सकते हो उनको. ठीक है, वो आपस में वर्क करती हैं, इसलिए प्रॉपरली स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड हैं. रिस्पॉन्सिवनेस, the system changes as per the environment and reacts to the changes in the environment. If the external environment changes, then systems responds as well by making changes in its parameters to stay relevant and work as per expectations. So responsiveness का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर या फिर
अनप्लान्ड चेंज आ गया है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज कुछ आ गया, तो सिस्टम्स उसको भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेंगे बाय चेंजिंग देयर ओन पैरामीटर्स टू स्टे रेलेवेंट एंड वर्क एज पर एक्सपेक्टेशंस। अब हमारे पास क्या बचा, रिजल्ट्स एंड फोकस। तो रिजल्ट्स क्या है, सिस्टम्स अप्रोच इज फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग राइट रिजल्ट्स फॉर द ओवरऑल सिस्टम। Each part needs to work according to the requirement of the overall system and product expected results. All departments and subsystems of the overall large system need to product results. Just one or two parts performing well will not help the system. सिस्टम के जितने यूनिट्स हैं उनको उतना ही प्रॉपरली परफॉर्म करना पड़ेगा जितना कि बाकी सारे सिस्टम्स को। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि एक सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं है, या उसका परफॉर्मेंस बस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, बाकी दोनों अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट। दिस इज नॉट द केस। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस। द फोकस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम शुड बी क्लियरली एंड वेल डिफाइंड। Example, all the departments in the organization should have their clear responsibilities to make the system or organization work. Overlapping responsibilities can reduce the focus and effectiveness of the entire system. अगर आप ये करोगे कि आप roles and responsibilities को overlap कर रहे हो, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं पता कि उनका बाउंड्री लाइन कहाँ है या कौन से रोल्स हैं उनके पास, कौन से नहीं है, तो दैट विल हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ठीक है, तो इसलिए जितने डिपार्टमेंट्स हों ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास उनकी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि वो उनको क्या क्या रोल प्ले करना है, उनकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ दे हैव टू वर्क एंड ऑन व्हाट दे हैव टू वर्क। ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी वेरी clear so that the employee can focus properly, yes, and it can perform well for himself and for the organization. Next we have importance of system approach. System approach is very important as it provides the bigger picture. It sees all departments and subsystems as contributing factors for the overall organization. Overall success of organization is seen as a whole and not success of one department over the other. अभी हमने ये डिस्कस किया कि हर डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी के 5 नहीं कर रहे हैं तो वी कैन नॉट से कि जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी सक्सेस हो गई। नहीं, ओवरऑल तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गेटिंग अ सक्सेस। सो ऑल जो आपके जितने डिपार्टमेंट है सबको उतना ही प्रॉपर वर्क करना है। यही होता है हमारा सिस्टम अप्रोच, वेयर वी रियलाइज दैट वी एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम हैव टू वर्क कोऑर्डिनेशन में, कॉपरेशन में, है ना। हमारी परफॉर्मेंस इक्वली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और अफेक्ट करती है। It aims at meaningful analysis of the organization and their management. It facilitates the interaction between organization and its department. It guides managers to avoid analyzing problems in isolation and to develop an integrated approach. एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है, if we are facing an issue in a company related to sales, है ना, सेल्स का बहुत जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच आर क्या कह सकते हैं, विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट बिल्डिंग, है ना, और टूल्स बिल्डिंग। ठीक है, तो उसमें हम एक काम करते हैं कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, वी ओनली सी प्रॉब्लम टू बी सॉल्व विद द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स के साथ प्रॉब्लम है तो हमें क्या लगा, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है। rather than all the departments together we may not be able to solve the problem effectively. Only focusing on sales will lead to more pressure on sales team to increase sales, ठीक, leading to poor customer experience as the sales department will try hard on upselling or cross selling, ठीक। But if we use system approach and see the problem of sales at whole level, अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे कि सेल्स के साथ प्रॉब्लम है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है, अब उनको प्रेशराइज करो कि हमारी सेल्स को इंक्रीज करो, ठीक। और वो क्या करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस पुअर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ट्राई करेंगे अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग। लेकिन अगर हम सिस्टम अप्रोच की वजह से बिगर पिक्चर देखें, ठीक है, सो वी माइट सी दैट द प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी अ इशू, इसलिए हो सकता है सेल्स डाउन हो गई है, ठीक है, या फिर मार्केटिंग इनफ नहीं हो रही प्रोडक्ट के लिए इसलिए सेल्स डाउन हो गई है, और मे बी द आफ्टर सेल सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड लीडिंग टू ड्रॉप इन सेल्स फिगर्स।
तो जब हमने बिगर पिक्चर देखी तो हमें लगा कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती है, मार्केटिंग नहीं हो रही अच्छे से, हो सकता है कि प्रोडक्ट को जब हम सेल कर दे रहे हैं उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी एक इशू है इसलिए कस्टमर्स उसको लेना नहीं चाह रहे, ठीक। So the company can focus on overall goals and strategy to make sure that a high quality product or service would be produced with great customer experience. That will help not only help the sales. ठीक है, तो ये पूरी कंपनी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी. इट विल नॉट ओनली हेल्प द सेल्स, इट विल हेल्प द होल कंपनी एज अ होल. Fine. So that is why system approach is quite important, where we don't see a particular problem as related with a particular department, but we see the bigger picture related to it, कि कहाँ पे problem आ सकती है, उसका effect कितना बड़ा होगा, या फिर we dig into the problem at each level, कि ये problem आई कहाँ से, where from where it is arising. So that is known as the system approach. Elements of system approach. An organization is a unified and purposeful system consisting of several interconnected, interacting and interdependent parts. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे. The parts of a system are called subsystems. जो छोटे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया एक पूरा सिस्टम, ठीक है, और उसके सब सिस्टम्स हो गए जो हमारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. Each subsystem influences the other subsystems and the system as a whole. हर सबसिस्टम के अलग, उनके अलग अलग इंटरनल डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है. लेकिन ये जो सारे सब सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, ठीक है. वी सी द बिगर पिक्चर इन सिस्टम अप्रोच. द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ ईच सबसिस्टम कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड ओनली इन रिलेशन टू अदर सबसिस्टम्स एंड टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. Each subsystem derives its strength by its association and interaction with other subsystems. As a result, the collective contribution of the organization is greater than the aggregate of individual contributions of its subsystems. This is known as synergy. ठीक है, ये आप लर्न कर सकते हो that as a result, the collective contribution of the organization is greater than the aggregate of individual contributions of its subsystems. This is known as synergy, and this is the concept used in system approach. Each system has a boundary that separates it from its environment. The boundary determines which parts are the internal to the organization and which are external. For example, employees are within the boundary and creditors, customers are external to a firm. तो यहाँ पे internal boundaries में कौन आ गए हमारे पास, employees आ गए, और जो external है बाउंड्री के जो बाहर के लोग हैं वो क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, विच आर एक्सटर्नल टू अ फर्म. नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द आउटपुट इज नोन एज फीडबैक. ठीक है, फीडबैक इज यूजफुल इन evaluating and improving the functioning of the system. Organizations operate on the principle that they have several alternative ways of doing same thing or achieving the same goal. अब यहाँ पे इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, और फिर आउटपुट से इनपुट का फीडबैक मिला, ठीक है. जो ये लिखा है देयर रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द आउटपुट इज नोन एज फीडबैक. सो दिस इज द रिएक्शन. ठीक. एडवांटेज ऑफ सिस्टम अप्रोच. एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स टू सी द प्रॉब्लम एट होलिस्टिक लेवल एंड रिजॉल्व्स द इश्यूज. होलिस्टिक लेवल मतलब व्हेन वी सी अ सिस्टम एज अ होल. System approach helps understand the problem in a better way and comes up with more efficient solution. इसका जो solution है वो ज़्यादा efficient होता है. It clearly defines the scope or the boundary for systems and problems where influence of internal and external factors can be seen. Disadvantage क्या है? Disadvantage है sometimes problems are too complex and needs focus on the subsystems rather than keep seeing system as a whole. ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसी problems आ जाती हैं जहाँ पे हम जो प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर सब सिस्टम के साथ ही है, उसके बाद हम उसकी एक बिगर पिक्चर को इमेजिन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट टेक इट एज हाइपोथेटिकली कि नहीं प्रॉब्लम तो हम एज ए सिस्टम अप्रोच ही देखेंगे, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरे डिपार्टमेंट का देखेंगे. नहीं, वहां पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है, तो अगर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसकी बड़ी पिक्चर कुछ नहीं हो सकती. देयर शुड बी नो होलिस्टिक अप्रोच टू दैट, क्योंकि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट उस पर्टिकुलर सब सिस्टम में है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में
नहीं है, तो वहां पे ये चीजें थोड़ा सिस्टम अप्रोच थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक। While designing from bottom to top, focus on subsystem is required and important details can be left in case focus is only kept on overall systems. ठीक. Many a times while solving a specific issue leads to focus on a component and not overall system. फिर आते हैं हम नज थ्योरी पे, ठीक। अब नज थ्योरी क्या है? Nudge theory is a concept in behavioral economics, political theory and behavioral sciences that proposes positive reinforcement and indirect suggestions as way to influence the behavior and decision making of groups or individuals. तो basically हम किसी और का decision making और behavior influence करते हैं, कैसे? Positive reinforcement देके या indirect suggestions देके। इसीलिए ये किसका पार्ट है? Behavioral sciences का पार्ट है। Nudge theory was originally developed 21st century by American behavioral economist Richard Thaler and Cass Sunstein. इन दोनों का नाम याद कर लीजिए, Richard Thaler and Cass Sunstein, and they presented the theory in the renowned book Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, which was published in 2008. A nudge refers to principle that small action can influence the choice of people or the way people behave. ठीक है, नज एक प्रिंसिपल की तरफ इन्फ्लुएंस करता है जो कहता है कि एक छोटा सा एक्शन लोगों की चॉइस और लोगों के जो वे है वो उनके बिहेव करने का उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। इट फोकसेस ऑन एंगेजिंग पीपल बाय नोइंग दैट हाउ पीपल मेक चॉइसेस और मेक डिसीजंस। हमें उनके डिसीजन और चॉइसेस को क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना है। दैट इज नोन बेसिकली, अगर हम बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प भाषा में बोलें तो ये है नज थ्योरी, जहां पे हम लोगों के डिसीजंस, उनके बिहेवियर और उनके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। The nudge theory encourages indirect techniques to influence the behavior instead of giving direct instructions. हम instructions नहीं देंगे, क्योंकि जब हम instructions देंगे तो शायद सामने की तरफ से resistance आ जाए कि हम नहीं मानेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? इनडायरेक्ट टेक्निक्स दे रहे हैं, ठीक। नज थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन अ सटल वे टू एनफोर्स चेंज। बहुत ही सटल वे में हमें एनफोर्स करना है अपने चेंज को। सो हाउ इट इज डन बाय नज थ्योरी विच इज गिवन बाय रिचर्ड थेलर एंड कैस सनस्टीन। नजेस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नजेस क्या क्या है? Perception nudges. These are action which play around perceptions of organizational behavior. Individual have different perception of the different situation. ठीक है? So it is important to have an understanding of employees' perception of the desired change. This will also give an idea that what are the impediments to change and how these can be overcome by influencing perception of employees. अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो employee है उसका perception क्या है, जो डिजायर्ड चेंज आप लाना चाह रहे हो उसके लिए एक एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या है, अगर वो आपको पता चल जाता है तो आप जो है अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेकिन पहले क्या होता है, आपको पता चलना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय का परसेप्शन है क्या उस डिजायर्ड चेंज के लिए, ठीक है। फिर है मोटिवेशन नजेस। दीज आर एक्शंस व्हिच आर नीडेड टू मेक एम्प्लॉयज केयर अबाउट अ चेंज, ठीक है। इनडायरेक्टली हम उनको क्या कर रहे हैं? दे हैव टू केयर अबाउट अ चेंज, फाइन। There are many forms of motivational nudges and organization can take example of other individual example to show the others that is the best behavior and fits to the idea of change. हम अगर किसी का एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, कि हाँ हमें ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है और इसके जैसा हमें करना है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया? आपने पूरी ग्रुप को एक रोल मॉडल दे दिया कि हाँ ऐसा करना है। आपने उनको ये नहीं बोला कि आप ऐसा काम अच्छा नहीं करते हो या आपको ऐसा करना चाहिए। आपने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो हमारे लिए ऐसे अच्छा काम करता है एंड आई थिंक ही शुड बी लाइक दैट, है ना, एवरीबडी शुड बी लाइक दैट। तो बेसिकली यू आर शोइंग देम और यू आर इनडायरेक्टली गिविंग देम द वे ऑफ हाउ टू बिहेव और हाउ टू वर्क, है ना, एंड दैट वाज योर डिजायर्ड चेंज। आप ये डिजायर्ड चेंज चाहते थे और ये आपने कर दिया, है ना। तो समझ आ रही नज थ्योरी क्या है? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना, ठीक है।
Ability and simplicity nudges. When change is hard and complex and employees feel it is difficult to adopt changes, then simple nudges are needed by organization. These simple and tiny actions will improve employees' ability to adopt to change. ठीक है, जब बहुत लगता है एम्प्लॉय को कि अरे नहीं यार मेरे से नहीं होगा, बहुत हार्ड और कॉम्प्लेक्स हो गया है, चेंज को अडॉप्ट करना नहीं हो पाएगा, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक सिंपल और टाइनी एक्शन से वो जो है अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं ताकि वो चेंज को अडेप्ट कर ले. ठीक है. प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट नच थ्योरी. क्या क्या प्रोसेस है उसका? क्लैरिफाई योर गोल्स. पहले आप गोल्स को क्लैरिफाई करो कि चेंजेस किसके लिए होने हैं, क्या गोल है आपका. ठीक है. तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Before implementing a change management strategy, you need to clearly define what changes are needed to overcome your obstacle or begin your new business path. कि obstacle है क्या आपका. ठीक है. Work backwards from your goal to determine the following. What changes are absolutely necessary in order to reach your goal? What changes will make the most impact with the fewest issues? What changes can you avoid? ठीक है. आप जब अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो चीजों को, ठीक है, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि कौन से चेंजेस नेसेसरी हैं आपके गोल्स के लिए. अगर नेसेसरी नहीं है तो उनको अवॉइड कर दीजिए. ठीक. और कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट वाले हैं लेकिन इश्यू उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो इस हिसाब से आप कैटेगराइज करो और अपने गोल्स को क्लैरिफाई करो कि कैसे से कैसे आपको गोल्स चाहिए और क्या क्या चेंजेस के थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो. Next we have analyze your impact. Next, examine your change management strategy with your leadership team. Analyze how it will be perceived by employees as well as how it will impact departments, teams and individuals. अब आपने चेंज तो सोच लिया कि हाँ ये लेके आना है, लेकिन उसके बाद जो आपकी लीडरशिप टीम है उसके साथ आप मीटिंग्स करो, उसको एनालाइज करो कि कैसे वो आपके एम्प्लॉयज को और डिपार्टमेंट्स हैं, जो टीम्स है और इंडिविजुअल्स हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, हाउ इट इज अफेक्टिंग दैम. Prepare your answers to employee feedback and concerns so you can provide clear guidance and assurance. And in case if any employee is having a question regarding it, कि सर ये ऐसे से ऐसे कैसे करेंगे हम, so you have to prepare your answers. You should be answerable to them. ठीक है, ताकि आप उनको clear guidance और assurance दे पाओ कि हाँ you know what the change is, okay, and you have the hold about the change. Next is make a timeline. Create a step-by-step schedule that walks the organization through the change. पूरा step by step schedule होना चाहिए आपके पास उस change के लिए. This should start with any necessary announcements and notices through to full implementation and adoption of the change and any future reviews or reflections. Choose your techniques. As outlined earlier, there are several different nudge theory techniques that can help employees buy in and get comfortable with an organizational change. Review those recommendations to determine which nudge technique should be used to achieve the best results for your company. बहुत सारी techniques हैं nudge की, ठीक है, nudge techniques हैं, तो आप उनको review करिए उन recommendations को, determine which technique should be used to achieve the best results for your company. Because you know better for your company, so you will be able to select better for your company with among all the nudge theory techniques given. Okay, then you start nudging. Roll out your chosen nudge theory techniques and begin gathering employee feedback or data as needed. Set a realistic time frame to gather initial insights, after which you can adjust your strategy or techniques as needed. जब ये सारा काम हो जाए, आपने techniques choose कर ली, उसके बाद आप start करो. ठीक है, और उसके बाद आप एम्प्लॉय फीडबैक या डेटा के थ्रू कर रहे हो तो वो भी आप लो कि हाउ इज इट गोइंग. ठीक है, फिर रियलिस्टिक रियल टाइम में टाइम फ्रेम बनाओ. ठीक है, एंड वहां पे आप एडजस्ट करो अपनी स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स को जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट इज रिमेन ओपन. नो नजिंग टेक्निक विल वर्क इन एवरी सिनेरियो फॉर एवरी टीम, बट फॉर श्योर, यस और नो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल एक्टिविटी इज डिफरेंट. ओके, और हर सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर टीम डिफरेंट होती, तो हर सिनेरियो, हर टीम, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टेक्निक या हर टेक्निक उसी के लिए वर्क करे. Your team's response to change will depend on their relationship with their work, their leadership and their peers. Change is difficult, so be open and understanding to your team's concerns. Don't be instructive.
Okay, if you turn out to be instructive, you are imposing the change. You don't have to impose the change, you have to influence the change. Now that is what we are talking about in nudge theory. Okay, तो जो response है आपकी टीम का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? उनके रिलेशनशिप विद देयर वर्क, द लीडरशिप एंड देयर पीयर्स. तो वहां पे यू हैव टू बी वेरी ओपन एंड अंडरस्टैंडिंग टू योर टीम्स कंसर्न. इफ दे हैव एनी क्वेरीज अबाउट इट, इफ दे वांट टू नो अबाउट इट, इफ दे नीड एनी गाइडेंस अबाउट इट, be sure that you are available for them. So that is what we mean by remain open. Implementation of nudge theory. अब ये कुछ practical सिनेरियोज हैं, ठीक है, इनको एक बार गो थ्रू करते हैं. गोल है हमारा कि एम्प्लॉय का परसेप्शन चेंज करना है. ठीक, अब इसमें क्या है, हाउ यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन हाउ इट्स परसीव्ड. In a corporate setting, you can use nudging techniques to improve how employees view a certain task, experience or upcoming change. गोल क्या है, एम्प्लॉय का परसेप्शन चेंज करना है. एग्जाम्पल देखते हैं. It's time for a sales employees annual performance review. When relaying customer feedback for the past year, you can frame the information in two ways. 65% of the customers say that they had a positive service experience, or 35% of customers say they had a negative service experience. ठीक है, अब इस पे ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो. ठीक है, अगर आप इसको लेके बैठ जाओ, 65% कस्टमर्स ने बोला कि हाँ उनको पॉजिटिव सर्विस एक्सपीरियंस है, सो दिस विल गिव हिम अब पॉजिटिव फीडबैक. ठीक, लेकिन अगर आप ये कह दो कि 35% ने तो बोला कि नेगेटिव सर्विस एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या किया, 35% ऑफ कस्टमर्स को हाईलाइट कर दिया, बोल रहे कि नेगेटिव सर्विस एक्सपीरियंस है, बल्कि मेजॉरिटी कस्टमर्स के पास क्या था, पॉजिटिव सर्विस एक्सपीरियंस था. ठीक है, तो उस पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट नहीं किया. यू वेंट आफ्टर 35% ऑफ कस्टमर्स सेड दैट दे हैड अ नेगेटिव सर्विस एक्सपीरियंस. सो दिस इज लाइक हाउ यू कैन चेंज द परसेप्शन by presenting the information. आप जिस तरह से इन दोनों नंबर्स को प्रेजेंट करोगे, उसी से वो पूरी इंफॉर्मेशन का परसेप्शन चेंज हो जाएगा. Of course, one statistics from the other, but it's how you introduce the information that impacts their perception. If you lead with 65% of the customers having a positive experience, it sets a positive tone. As I told you, 65% ज़्यादा नंबर, ज़्यादा कस्टमर आपके उसमें है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, वो एक पॉजिटिव टोन ले रहा है. लेकिन अगर आप 35 कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, उसको लीडिंग अपना वो बना रहे हो, तो वो क्या है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और इट में डिमोरलाइज द एम्प्लॉय ऑल्सो, इवन इफ द मेजोरिटी ऑफ हिज इंटरैक्शंस वर इंडीड पॉजिटिव. मेजोरिटी इंटरैक्शन उसके पॉजिटिव थे, लेकिन यू फोकस्ड ओनली ऑन 35% ऑफ द कस्टमर्स. अगर आप इसको लेके चलोगे तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा. ठीक, अगर आप इसको लेके चलोगे तो फिर भी उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव परसेप्शन थोड़ा सा बन रहा है और यहाँ पे वो डिमोरलाइज हो रहा है तो नेगेटिव बन रहा है. ठीक है, सेकेंड है, गोल क्या है हमारा, टू इंक्रीज द मोटिवेशन. Want to encourage employees to become more interested or involved in a workplace initiative? Use motivational nudges. Comparison and competition tend to be natural motivators. If an employee sees one of their peers or most of them involved or succeeding in a workplace initiative, it can motivate to join them. अगर वो ये देख रहा है कि उनके peers, साथ वाले, उनके जो लोग involved हैं work place पे, ठीक है, अगर वो सक्सेस की तरफ है, ठीक है, तो वो जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको भी मोटिवेट कर देता है कि हाँ मेरे को भी करना है. तो कंपैरिजन और कंपटीशन जो है हमारा, वो क्या है, नेचुरल मोटिवेटर्स हो जाते हैं. एग्जाम्पल, योर कंपनी हैज स्टार्टेड अ मेंटरशिप प्रोग्राम दैट पेयर्स सीनियर स्टाफ विद इंटर्न्स एंड एंट्री लेवल एम्प्लॉयज. द ओनली प्रॉब्लम इज यू हैव मोर मेंटीज देन mentors. Though senior staff members initially voiced interest in the program, few have officially taken on a mentee. First, you have to get to the heart of the issue. Mentors have lost interest. They feel they're too busy or aren't sure how the experience will play out. If the main issue is lost interest, implementing motivational nudges can help. In this scenario, motivational nudges may include rewards and incentives for those who participate, such as increased paid leave for each of your mentorship, a monetary bonus or another high quality incentive. जब हम इनको देंगे, ये सारे incentives देंगे, so they will surely participate. If receiving those incentives isn't motivation enough, seeing their peers take an
extra paid holiday when they are feeling tired or overworked may eventually do the trick. हो सकता है स्टार्टिंग में लोग नहीं पार्टिसिपेट करें कि अरे नहीं हमें कोई मॉनेटरी बोनस नहीं चाहिए, ठीक है, पेड लीव नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ वाला एक्स्ट्रा पेड हॉलीडे ले रहा है जिस दिन वो टायर्ड या ओवरवर्कड हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उनको ये लगेगा कि यार हमें पार्टिसिपेट करना है बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय द एक्स्ट्रा पेड हॉलीडे. सो यहाँ पे हुआ चेंज है ना, वी आर इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर. गोल क्या है यहाँ पे, टू एनहांस देयर एबिलिटीज. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एन एम्प्लॉय डजंट बिलीव दे हैव व्हाट इट टेक्स टू अचीव अ गोल दे लाइकली वोंट अटेम्प्ट इट एट ऑल. ये हर बार होता है ना, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर वो चीज नहीं है, हम गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो अपनी एबिलिटीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता. इन दिस सिनेरियो यू कैन यूज नजेस टू चेंज द परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटीज. नजेस को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. वी आर गोइंग टू चेंज द परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटीज एंड गिव देम द टूल्स दे नीड टू मेक द टास्क easier. Example, more likely than not, you have an active living program already in place in your organization. But is it being used? If not, you may just need to remove some simple barriers. For example, in the office kitchen break room, putting healthy snacks at an eye level and make them more accessible than unhealthy snacks can naturally motivate employees to make better food decisions. Or, if you are looking for ways to make meetings more engaging and enjoyable, give employees the freedom to choose the location and activity. When sending a meeting invite, provide them with the option to book a walking meeting, a meeting over lunch, or a video or phone call. ठीक है, तो जब हम उनकी एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए हमें उनको प्रॉपर ऑप्शंस देने पड़ेंगे ना. वी हैव टू गिव देम द टूल्स टू मेक द टास्क इजियर. ठीक है, और हम जैसे अगर हम उनको मीटिंग का इनवाइट दे रहे हैं, ठीक है, अब जैसे अगर कोई पर्टिकुलर मीटिंग में द एम्प्लॉयज आर नो चूजिंग how will the meeting be, where is the location, what will the activity, yes, so they'll be taking more participation in that meeting because they know that now they have a say in that. उनको पता है कि उनका decision, no, it's important for them, so they'll put their best in that particular meeting and they'll engage and enjoy that thing. Okay, तो यहाँ पे हम उनका परसेप्शन चेंज करें, वी आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर्स ऑफ क्विटिंग द मीटिंग एंड नाउ ज्वाइनिंग द मीटिंग. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा गोल टू गेट अप्रूवल और अग्रीमेंट. जब लीडरशिप मेंबर्स वॉइस करते हैं चेंज को, ठीक है, तो नज थ्योरी उनको हेल्प कर देता है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो भी अप्रूव करें चेंज पे, अग्री हो जाए चेंज पे. ठीक है, so encouraging employees to share their goals and ideas on the topic can help others come to an agreement. You could also use social proof from other companies or related industries to show employees how well an idea has worked and how they could experience the same results. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो अगर उस पर्टिकुलर कंपनी ने, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पर्टिकुलर चेंज इंप्लीमेंट किया है, तो आप उसको एज ए सोशल प्रूफ दिखा सकते हो कि देखो उन्होंने इंप्लीमेंट किया है और इट वर्कड वेल फॉर देम, है ना, सो वी कैन ऑल्सो वर्क इट. ठीक, तो अगर एक एम्प्लॉय के पास एक वो आ जाएगा कि हाँ नहीं ये किया तो गया है एंड इट्स फाइन, वी कैन ऑल्सो डू इट, तो यू आर गेटिंग द अप्रूवल और अग्रीमेंट. अगेन यू आर नॉट इंस्ट्रक्टिंग. ठीक है, नज थ्योरी इंस्ट्रक्शंस पे बिलीव नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस पे बिलीव करता है. ठीक है, सो अगेन यू आर नॉट इंस्ट्रक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और चेंज. ठीक है, यू आर इन्फ्लुएंसिंग दैट बिहेवियर. अगर वो एक बार सोशल प्रूफ देख लेंगे तो उनकी वो एक इनसिक्योरिटी चली जाएगी चेंज को लेके. ठीक है, और वो बिल्कुल आपके साथ अप्रूव्ड और अग्रीड रहेंगे कि ठीक है, ओके, वी आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद यू विद दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज. अब एग्जाम्पल क्या है, leadership wants to implement a hybrid working approach where employees can choose to either come into the office or work remotely, but employees are divided. अब क्या हुआ, while some employees appreciate the flexibility, the others feel a hybrid approach might hinder workplace culture, communication and engagement. Since many companies have already implemented hybrid working, you'll easily be able to find reports and case studies on its success rate. Use this established data to speak to your employees' concerns and introduce them to tools that will help their experience run smoothly. ठीक है, तो ये तो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल, बट वी आर सीइंग इट इन रियल. लाइक ड्यू टू द पैंडेमिक मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव गॉन थ्रू वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड अप्रोच, कि
some people are working in that particular organization at one time, दूसरे उसी टाइम पे वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये चेंज बहुत ही हार्ड था। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जो एक सर्टेन एज पे आ गए थे, जो ये प्रेफर कर रहे थे कि उनको रिमोटली वर्क करना है, दे कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम, दे डिडंट वांट टू वर्क फ्रॉम होम। उस केस में क्या हुआ, जो कंपनी थी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने अपने हर एम्प्लॉय को ट्रेन किया ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दे कैन डू देयर वर्क प्रॉपरली एट होम ऑल्सो, है ना। वी सी दिस एग्जाम्पल गोइंग ऑन इन टीचिंग एज वेल। टीचिंग हैज गॉन थ्रू नो, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑन गूगल मीट हो गया, जूम क्लासेस हो गई, कुछ स्कूल्स ने तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है वेयर दे इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स। सो इसमें जब ये चीज की गई तो उन टीचर्स को भी तो ट्रेन किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने। कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो एक सर्टेन एज पे आ गए थे विच डिडंट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस चेंज, बट उनका टीचिंग इतना अच्छा था कि द स्कूल कैन नॉट लीव देम, सो व्हाट दे डू, दे had to train that particular teacher कि आप ऐसे से ऐसे करो and help out them, पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि उनको इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब ऐसा किया तो उनको ऑब्वियसली those teachers or those employees were getting approval or agreement on this change. Next is goal is to change the default. How often do you click the accept cookies button on a website without looking at your options? Quite often, most likely. That's because people are more likely to accept the default direction than go against it. Okay? In the workplace, you can change the default option in a scenario to positively influence your employees' decisions. Example, let's say you want to increase enrollment in pension schemes. Instead of providing employees the choice to opt into a pension scheme, automatically enrolling employees in pension schemes and including an opt-out option offers a better likelihood of success. ठीक है, to change the default में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, we are like programmed to do the default thing. हम उसके options नहीं देखते, हमें जो default लग जाता है हमको लगता है कि ना इसी तरफ जाना चाहिए, we want to go to the default direction and we are more likely to accept that particular default direction. We have no resistance to it. हम उसमें कोई resistance नहीं दिखाते हैं कि we have to accept it or not accept it. ठीक है, जब भी ऐसे like they have given the example here, accept cookies. So most of us what they do, we accept it, I agree. ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ठीक है आई अग्री, कभी आई डोंट अग्री करके हम लोग ने ऐसा देखा नहीं कि आई डोंट अग्री करेंगे या फिर हम उस चेक बटन पे क्रॉस लगाएंगे या टिक नहीं लगाएंगे तो कहाँ पे वेयर इट विल टेक अस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट को ही चेंज करना है, जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ऑप्ट इन की वजह से जगह पे हमें ऑप्ट आउट कर देना है। ओके, डीमेरिट्स हैं नच थ्योरी के, दो इट इज वेरी बेनिफिटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने देखा कितना सारा कुछ, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखे, लेकिन कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, जैसे nobody wants to be forced to change their behaviors or actions. हालांकि हम इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम इन्फ्लुएंस जब कर रहे हैं, सो वी आर इनडायरेक्टली फोर्सिंग टू चेंज द बिहेवियर्स और एक्शन, तो कोई ये नहीं चाहता। This top-down type of leadership can make employees feel like they aren't respected, trusted or valued in the workplace, leading to weak workplace culture and lack of motivation. ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है टॉप डाउन हायरार्की से, तो इसकी वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि उनका रिस्पेक्ट नहीं है, nobody trusts them or they don't have any value, and this can lead to workplace culture and lack of motivation. Trying to force change upon an employee can more often than not lead them to ignore what you are trying to get them to do or to rebel and do the exact opposite. ठीक है, so this situation can also occur. To avoid that outcome, HR should instead use the nudge theory to encourage change. Okay, this approach consciously or unconsciously encourages employees to improve and change their behaviors themselves, leading to better organizational alignment, increased motivation and better day-to-day engagement. ठीक है, ये थ्योरी को हम सिर्फ इसलिए यूज नहीं करते कि आप बिल्कुल उनका बिहेवियर एनालाइज इन्फ्लुएंस करके चेंज कर दो, बट किस लिए करते हैं कि वो अपने आप उस बिहेवियर को चेंज करें और वो इम्प्रूव हो, एम्प्लॉयज को इम्प्रूव होंगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा।
ठीक है, प्रॉपर हमें बेटर ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट मिलेगा, उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा और बेटर डे टू डे एंगेजमेंट होगा। ठीक है, so this is the end of the video. Thank you so much for being with me throughout this topic. और ये आपके पास टेलीग्राम लिंक है हमारे चैनल का, आप प्लीज इस पे जाके अपने पीडीएफ्स को एक्सेस करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, विच एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, and I wish and I hope that you will be in your very good health, both physically and mentally, because both are important, equally important for you to prepare for your exams. See you next time. Thank you so much.